belong to new generation where people are crazy about new generation jobs, new age jobs. So, what prompted you for civil services? Actually, like every other Indian household, even I was told since my beginning कि IAS जो है सबसे बड़ी जॉब है देश की and बहुत कुछ करने को मिलता है. तो in schooling ऐसे ही होता है, but then when you get into college, then you have to make decisions for your life कि कौन सा career choose करना है, and I had many options with my hand. So I started looking for all the different career options that were available. Being from the engineering background, and then I had worked in data science also. So I thought I have few options, but let me go where I really like the most. Then when I started knowing about this profession and this career where you get to be the part of the civil services of the country, and you get to directly impact the lives of others, where at the same time you are getting a good status in the society, your job or your works are being recognized by the society, opportunities that anybody can have. And at a very young age, civil servants, we are bestowed upon with a lot of responsibilities, which I don't think any other new age profession will give to a young professional. So with all these things combined, I thought of going for civil services, and then thankfully I cleared it in the second attempt. So right now I am serving in the northeastern part of the country, a very remote town, but still I'm enjoying it. The challenges here, the administration here, it's a completely new experience, which I don't think any other profession or any other career would have given me this opportunity. So I'll start with your experience and what you're talking about. The service which you perceived when you were preparing or planning for, and now when you are in IAS. So how do you feel? How it's enjoyable and how rewarding it is? Actually, when we start preparing for civil services, and the image that we have of an IAS officer or any of the civil servants, it has a lot to do with glamour, power, authority, and these things which people get to see. But when we enter into civil services and we get to work on the field, we get to work with the people, solve their problems, help them out with day-to-day administration, then we actually realize what's the meaning of IAS. And coming from a completely different, born and brought up in a completely different environment, when I come here and work, so these things about the perks and privileges, these are all our secondary things. The primary thing is the work that we do, and a lot of the brainstorming and the management of people, management of resources, handling of crisis, making sure that everything is available to everybody. Right now, most of my career has spent in COVID only. So ensuring that the people are safe, at the same time the resources are also in ample amount, and we are able to continue the essential services, also maintenance of law and order. So these many things, they make up the job. It's not just the perks and privileges. So coming into the civil services, we realize the huge amount of responsibilities that we have, the amount of expectations the people have with us, and the responsibilities that we have over our shoulders, that nobody else can do this in the district, and everybody in the district is looking up to us for decisions, for guidance, for motivation. So that makes this service really different and really special, and it's one of the very fortunate ways for me to serve the people directly. Yes, as these are really tough times, and the way this second wave of Corona has impacted our lives. Like last year, prelims once again have been postponed. So there's a lot of anxiety among candidates. People are really frustrated. Few students I talked to, they talk about that they were really ready to go, and this has been postponed. So in what way you would like to suggest what one should do, how this 3 months period can be utilized for preparation, and what one should do?
Yes, and actually this period has been really tough, and most of the people have gone through some very, very harsh times with respect to their families or with respect to their own health. So for a moment, I would like to keep that little aside and just focus on the preparation. So I would say that these 3 months, I think they should be taken as a very good learning experience, that how uncertain things are in life, and we are, if when you become an officer, and then also you have to face such uncertainty, such crisis, and such unexpected things. So same thing, the aspirant should also keep in mind that right now they are preparing for civil services, so they have to tackle this uncertainty, because they have to tackle a lot of uncertainty and crisis once they clear the exam. So this time, the 3 months that they have got, they should take it as another opportunity to revisit the things that they have not completed yet. Or most of the students, like I have also gone through the same phase. So for example, like ऑप्शनल को हम छोड़ देते हैं कि प्रीलिम्स के बाद देखा जाएगा, पहले प्रीलिम्स की तैयारी तो कर लें, बट नाउ these 3 months वी हैव गॉट, तो जो ऑप्शनल किसी का छूटा हुआ है तो वो ऑप्शन कवर अप कर सकता है. अगर कोई आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी रह गई है, एथिक्स या ऐसे रह गया है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं. सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. डोंट थिंक कि ज्यादा टाइम मिल गया, ऐसा नहीं है. टाइम यूपीएससी के लिए हमेशा कम ही रहता है. इट्स द पर्सन हु manages the time really well, the person who makes the best out of whatever time he or she has at the disposal, I think that person gets to clear this examination. So इसमें over confident या complacent होने की जरूरत नहीं है. Treat it as an opportunity to make up on your mistakes or to make up on things that you have not done so far. Since you are successful, I would like to know what are the skills and traits one require to when preparing for this examination, and what differentiates between winners and losers. Losers in the sense those who are not able to make it. They are not losers, they are still everybody, I think decide, everyone puts in labor, but this examination rewards only a few. So, I think sir, आप तो इतने सालों से aspirants and toppers को देख रहे हैं with your experience, so you would also second this, that there's a very thin difference, very small difference between the people who clear the exam and people who are not able to clear the exam. And yes. I have also faced the same. In my first attempt, I reached till the interview. I just missed by 5-6 marks, and I had to give the attempt next year, starting from prelims. And next year, thankfully, I was able to clear the exam and getting into IAS directly. So there's a very small difference between people who clear the exam and who are not able to clear the exam. So yes, luck has a role to play. But apart from luck, it's the approach that you adopt. Even after getting failed, like you are not able to clear prelims or mains or interview, but the way you rebound, that shows your caliber, that shows your character, and that is really required for UPSC. And those who are giving it for the first time, the approach that is required towards this exam, we have to understand that this exam is to recruit officers. This exam is not a degree exam or a college exam कि आपने कुछ भी नंबर ले आए तो आपको डिग्री मिल जाएगी. Here it's a competition, and a cutthroat competition, and it's one of the most competitive exam in the world. So in that case, we have to understand कि इस exam का approach officers recruit करने के लिए है. The government is looking for people who are able to handle any crisis, who are able to take decisions on their behalf, who are able to be on the field and guide people on their way. So this approach one has to keep in mind while studying every subject. तो बहुत सारे aspirants होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है, कैसे याद होगा, याद नहीं हो पा रहा है. तो I just want to tell them that these are very small things. These are very small challenges and these are very small obstacles that you will face in life once you clear the examination. So अभी आप ये challenges को एक तरीके का एक barrier मानिए जिसको आपको cross करना है, तभी आप आगे जाके एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. तो ये अगर अप्रोच आपके दिमाग में रहेगी कि आपको आगे जाके देश के लिए बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं, आपको जब आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो आप लगभग 5 से 6 लाख लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. जो आपके पास फंड्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर के लिए, वो अराउंड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में ट्यून होते हैं. तो जब आपको इतने बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे डिसीजंस तो आप अपने लिए ले ही सकते हैं. तो इस अप्रोच के साथ इस एग्जाम को तैयारी करेंगे तो आपका एटीट्यूड एक सही एस्पिरेंट का रहेगा. तो आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके जो आंसर्स होंगे उसमें ये एटीट्यूड झलकेगा. तो इस बात का जरूर ध्यान रखें सब लोग. When we talk about beginning, when one decides about this examination, what should be the first step?
first step should always be to understand this exam. This is I always say in all my seminars or my videos that अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग हैं जो सीधे बस तैयारी करने उतर जाते हैं बिना कुछ समझे हुए इस एग्जाम को. तो पहले आप एग्जाम को समझिए, एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाइए. बिना स्ट्रैटेजी के भी उतरना गलत है. इट्स लाइक अ वॉर, एज आई सेड इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, तो इट्स अ वॉर. तो जब आप वॉर में बिना स्ट्रैटेजी बिना प्लानिंग के जाएंगे तो यू नो द रिजल्ट. So it's very important that you have a proper strategy, you have proper timeline where at what time and how many months you will cover what subject and how many months you will start with your test series, when will you start with your answer writing. All these things are very important, and they come with a clarity only after you understand the exam really well. You understand all the components of the exam, whether it is prelims, mains, optional, essay, answer writing. Everything should be clear in the beginning कि क्या क्या करना होता है and किस किस का क्या इम्पोर्टेंस है इस एग्जाम में. So once you are through with that, then you start with your actual preparation of studying with NCERTs or with the standard books, or if you want to join a coaching, then you can join a coaching also. If you don't want to join a coaching, then you can study those books, but with proper strategy and proper planning. So when it comes to you, what was your day-to-day plan? In what way you planned your endeavor? Actually, all these things which I mentioned, I took it very seriously upon myself when I was in college also. I used to understand this exam really well, कि questions कैसे पूछे जाते हैं, answers कैसे लिखे जाते हैं, क्या approach होता है. But when you come to this day-to-day endeavor, so I had left my job and the only thing I was focusing upon was to clear this examination. So my whole day went into preparation. And उसके अलावा कुछ होता नहीं था. So even it used to be around 12 to 14 hours a day and पता नहीं चलता था because the goal was so clear in front of you and you don't have any other option. So the whole idea behind maintaining your day-to-day schedule was to finish off GS, optional, newspaper, answer writing at the same time. एक के बाद एक sequence में नहीं होती हैं चीजें because things are happening simultaneously around us. So we have to understand everything simultaneously around us. ऐसा नहीं है कि आज स्टैटिक पढ़ लिया, कल जाके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा. आपको स्टैटिक चीजें और न्यूज़पेपर सब साथ में पढ़ना है. फॉर एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको जैसे साइक्लोन अभी इस समय हमारे देश में आया, वेस्ट कोस्ट पे भी आया और अभी ईस्ट कोस्ट पे भी आ रहा था. तो ऐसा अप्रोच नहीं होगा कि अभी हम साइक्लोन के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या स्टैटिक पढ़ लेते हैं फिर बाद में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. साइक्लोन अभी आ रहा है तो उसका स्टैटिक और उसका करंट जो अभी चल रहा है वो दोनों चीजें एक साथ जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम उन कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो these things are very important when you study that newspaper, your the current affairs and your GS subjects and your optional, they go on in hand with each other. You talked about importance of newspaper and how important it proved to be in your preparation. Yes, newspaper is one of the most important part of this exam, and to be very frank, I feel that अगर कोई ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. आई एम श्योर कंटेंट उतना नहीं मिलेगा बट यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी. तो आई हैव सीन दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स व्हिच पीपल पुट टू मी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं, उसके न्यूज़ नोट्स बनाने हैं कि नहीं, जो करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उससे काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा. तो आई वुड से कि न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज टू बी रेड डेली like a dose. It's like a medicine. It has to be taken daily, like your multivitamin. तो उसमें क्या फायदा होता है कि जब भी कोई इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी इजराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है पिछले 15-20 दिन से एंड अभी कुछ ना कुछ नया होता रहता है उसमें. तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें डे टू डे अपडेट मिलता रहता है एंड वी अंडरस्टैंड अ थिंग लाइक अ स्टोरी. तो हमें उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता. उसके लिए हम हर दिन छोटा छोटा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा. तो आप स्टोरी की तरह समझेंगे, थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके बैकग्राउंड देख लीजिए, स्टोरी की तरह समझिए और जब मंथली मैगजीन आएगी तो उसको रिवाइज कर लीजिए. तो इट बिकम्स वेरी इजी, द करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इजी. बट एट द सेम टाइम सम पीपल फील कि नहीं न्यूज़पेपर में बहुत टाइम जा रहा है, उसको नहीं पढ़ते हैं एंड एंड में जब मैगजीन मिलेगी करंट अफेयर्स की तो सिर्फ वही पढ़ेंगे. तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत सारा मगअप करना पड़ जाता है. उसमें आपको स्टोरी तो पता होती नहीं है, उसमें जो कंटेंट 2-3 पेज में लिखा होता है आपको रटना पड़ता है. And when you start mugging up things, then there is no end. इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना है, and if you start mugging without understanding, then आपके दिमाग में सिर्फ chaos and confusion ही रहेगा. Clarity and conceptual clarity तो आएगी नहीं कभी.
when you started your preparation, did you had anything in mind? कुछ ऐसा था कि GS I should score this much marks minimum, I should score approximately 300 marks or so in optional subject, and कुछ इस तरह का प्लान किया था आपने अपने लिए? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्लान नहीं किया था सर इसको. फर्स्ट अटेम्प्ट तो यही होता है कि आप सिलेबस खत्म हो जाए, आंसर राइटिंग ढंग से हो जाए. तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर हो गया मेरा. बट जब रिजल्ट आया इंटरव्यू का एंड आई फेल्ड बाय फ्यू मार्क्स, देन आई रियलाइज कि कहाँ कमी थी. देन आई एनालाइज कि मेरे मार्क्स और जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है, मेरे ऑप्शनल के मार्क्स और टॉपर्स के मार्क्स में कितना डिफरेंस है. देन आई मेड अ स्ट्रेटेजी कि दैट अगर हमें सेलेक्ट होना है तो जीएस में अराउंड 450 के मार्क्स आने चाहिए, अगर ऑप्शनल में क्लियर करना है तो अराउंड 300 के आसपास आने चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो हर क्वेश्चन में एक एक नंबर या दो नंबर एक्स्ट्रा हम ले पाए एग्जामिनर से. तो द सेकंड अटेम्प्ट आई रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस to get that single number on each and every question and each and every paper. So that really helped, and I was able to meet my targets. I got around 460 in my GS and around 295 in my optional. So for my target was met, and the results are in front of everybody, and I was also happy that I have crossed the target that I had set for myself. And when it comes to your choice, optional subject choice? Initially, it was difficult because I come from mechanical engineering background and having some experience in working also. So I felt that it's very difficult for me to go back to my college subjects. And at the same time, I had given my college exams in semester-wise in the span of 4 years. Now I have to finish off everything in just 3 months and give a single exam for that. So that really made me a bit apprehensive about taking my graduation subject. So, but I didn't have any other option also. So I thought that let's start preparing for GS first. And on the way, when I'll study all the subjects like polity, geography, economy, sociology, so then I'll be able to figure out कि कौन सा subject मेरे को click कर रहा है. And then I shortlisted 3 subjects: geography, political science, and sociology. Then to further ease my journey, I started looking back at their previous year question papers, the syllabus, and all the content that I would have to study for these subjects. And at the end, I realized that political science will be the best subject for me, and I should go ahead with that. And it really worked well for me. So I can say whatever decision you take, those are always on dot. It chipped in really 295. That's I think right now I think it's too early to say regarding services about my decision, but yes, for UPSC thankfully everything worked well, and I can say that I put in a lot of thought before taking any decision for UPSC. I used a lot of thought, and the cost benefit analysis of everything I used to do. So I think that really helped. I did not blindly follow anything. I used to put my own brain before deciding what to study, what not to study, and how to go ahead with that. A phrase that is commonly used in this arena is a real learning is learning about learning. Do you believe in this theory? Okay, that seems like a tongue twister for me. The real learning is learning about learning. Yeah, okay. So it feels like a ethics question, sir. that usually comes in that GS4 paper. But yes, learning constantly is very important. जैसे मैंने पहले आंसर में भी बताया कि कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, because things are happening, things are evolving gradually. ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार चीजें पढ़ ली तो काम खत्म हो गया. Like I again give an example. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो मुझे सोशल मीडिया पे या कहीं पे बोलेंगे कि हमने पॉलिटी खत्म कर लिया है, हमने ये इंटरनेशनल रिलेशंस खत्म कर लिया है. I'm like, how can anybody say that they have finished of this subject? The things are evolving throughout. कल कोई और इशू आ जाएगा, फिर आगे चीजें होती रहेंगी. तो the constant learning is very important. So if you know that art of constant learning, I think that will be the real learning, because you don't feel complacent, you don't get overconfident, and you always have the urge and curiosity to learn more about a particular topic. And that curiosity is tested in prelims and mains examination.
that the questions are totally based on one's curiosity, and same is tested in the interview also, that how much the person is willing to learn. When you go for the interview, if you don't know an answer, we can just say that we don't know it at the moment, but they want to see, is that person willing to learn? If you say that no, I'm not willing to learn, what I know is the like is important for me, and I don't really want to learn more, then the problem comes. Then the whole mindset for this exam is not appropriate. Coming to main examination, where now we have 4 papers, and what I feel as I talk to aspirants, everyone talks about starting preparation with paper 2, polity. One book is popular, and that's common for all. But still, when we look at scores, people are getting not so good marks. Average, I think paper 2 is the least among all 4 papers. Why is it so? Actually, again, I don't know, sir, if you have researched upon my UPSC journey, but whatever questions you are asking, they are somewhere related to my journey, because in my first attempt, I had political science as my optional, but in GS2, I scored only 80 marks, which was a big blunder for me, that having your optional as the same subject and you are not scoring even 100 in the GS2. And then I realized that I was overconfident. I thought that if I'm finishing off with optional, then I don't need to prepare much for general studies. But this difference comes that GS2 is the most analytical paper, because GS2 is totally dependent upon your views. When we talk about environment, when we talk about science and technology, or say economy, it's mostly what the factual things are, what the things are going on around. But polity is mostly about your opinion on a particular subject. Suppose we take an example of role of, when we talk about polity, so the questions are very controversial. I remember in that year, 2016, the questions were dependent on the Delhi statehood of Delhi, then the role of governor, or the role of speaker. Such controversial questions are there, and there it is very important that the aspirant writes the answer in a manner that is required by UPSC. There you cannot just bluff, you cannot just write away anything. You have to be politically correct, you have to be factually correct, and you have to give proper opinions that are worthy of becoming an officer. So there most of the people lack, and there people have to understand कि वो जो common book आपने जिसका जिक्र किया है उससे काम नहीं चलेगा. That's only a factual thing जिसका आपको system समझ में आएगा कि क्या होता है, but opinions नहीं बन पाएंगे. उस book में opinion से related कुछ भी नहीं है, and GS2 is all about opinions and rational solutions to things. So I really worked hard on that, and in second attempt I was one of the highest scorers in the whole all the toppers. I scored around 126 in GS2. Like from 80 to 126 was a very big jump for me. Yes. In GS2. So and I really put in like 60% of my time used to go in just preparing GS2 and learning most of the things and learning the writing, which really helped me. Like once results came, I could really see the difference. As people prepare for general studies, they prepare it subject-wise, constituents-wise, history, geography, polity, economy. But what I feel, this general studies, what UPSC has conceived is your general awareness about things, and you cannot generalize into subjects. So, because when you study, boundaries are so blurred. When you are reading economy, when you enter geography, you never know. So what was your plan of preparing for general studies? Actually, sir, that was the right strategy, and I also followed the same, that nothing in the world is in silos. अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ भी लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारे रिलेशनशिप हैं, हमारे करियर है, हमारा कॉलेज है, so many things are there. तो यही चीज यूपीएससी में भी होती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सब साइलोस में तो हो नहीं रहे हैं. जो भी हमारे देश में या विदेश में हो रहा है, एवरीथिंग हैज अ रिलेशन टू ईच अदर. तो अगर हम कोविड क्राइसिस की बात करें, तो कोविड क्राइसिस कहने को तो एक बायोमेडिकल क्राइसिस है, बट उसकी वजह से हमारा सोसाइटी पे इतना इम्पैक्ट हो रहा है. आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे लोगों के जो कैरेक्टर हैं, कितनी ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है, हमारे सोसाइटल वैल्यूज हैं वो खत्म हो रहे हैं.
अगर हम कोविड की बात करें तो इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी को नहीं पता है कि हम कितने टाइम में जाके इस इकोनॉमिक शॉक से रिकवर करेंगे। अब एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ रहा है कोविड के चक्कर में, जो नेक्स्ट बिग क्राइसिस आने वाला है आफ्टर कोविड, वो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल का आने वाला है। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसकी टोटालिटी में पढ़ना है, हमें सिर्फ साइलोज में नहीं पढ़ना है कि हमने सिर्फ इकोनॉमी पढ़ा है तो हम सिर्फ इकोनॉमी की बात करेंगे। एंड यूपीएससी ऑल्सो नोज दिस, एंड यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। जैसे आई रिमेंबर इन बोथ ऑफ माय अटेम्प्ट जो कैस्पियन सी इशू है विच पीपल मोस्टली स्टडी एज अ इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट, दैट वाज आस्क्ड इन ज्योग्राफी कि उसका ज्योग्राफी इम्पैक्ट क्या है। एंड सिमिलरली जीएसटी जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि सिर्फ टैक्स और जीएस3 के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, इट वाज आस्क्ड इन पॉलिटी कि उसका फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको देखना पड़ता है। एंड आई गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल फॉर दिस एंड आई थिंक थिंग्स विल बी क्लियर। जैसे अभी जो वेस्ट कोस्ट पे साइक्लोन आया था साउथ है, तो पीपल वुड स्टडी उसको ज्योग्राफी के टर्म्स में। एंड जो अभी हम कोविड में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा है उसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में उसको हम पढ़ेंगे। बट व्हेन द साइक्लोन केम, सो माय बैचमेट्स एंड माय पीपल माय फ्रेंड्स हु वर वर्किंग इन द वेस्ट कोस्ट, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी कि साइक्लोन से भी लोगों को बचाना है और ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन यूनिट तो वेस्ट कोस्ट पे उनको भी चलते रहना है। तो ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्लेस कि साइक्लोन आ रहा है जिससे ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स पे पावर आउटेज आ रही है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम समझेंगे इंटरलिंक करके यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान पे, तभी तो आगे जाके जब ऑफिसर बनेंगे तो हम इतने 5-6 तरीकों में 5-6 डायरेक्शन में सोच पाएंगे कि हमें क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। आई थिंक इस कोविड पीरियड में शायद कॉमन मैन को इम्पोर्टेंस पता चली है कि हाउ इफेक्टिवली आर मशीनरी वर्क्स, हाउ इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स आर। लोगों के दिमाग में शायद जो एक था पुलिस की एक इमेज, आई थिंक द वे ब्यूरोक्रेट्स हैव वर्कड, be it administration or police or other areas, people have set example in front of us, अपनी लाइफ को एक साइड में रखते हुए, अपने फैमिली को एक साइड में रखते हुए, the way you guys have worked, it's an example, and I think बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी को गया है इस चीज का। एक्चुअली जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले दिमाग में ये था कि व्हेन वी वर आस्किंग पीपल टू गो बैक इन द होम एंड वी वर मेकिंग श्योर दैट वी आर ऑन द फील्ड। तो ये बहुत डिफरेंस आ जाता है मेरी जो प्राइवेट सेक्टर वाली लाइफ थी और यहाँ लाइफ में। ये डिफरेंस है कि वहाँ क्राइसिस आता है तो आप अपने घर में आराम से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट ही नहीं है। आपको यू हैव टू बी ऑन द फील्ड, एंड अगर आप फील्ड पे नहीं है तो थिंग्स विल गेट स्कैटर्ड हियर एंड देयर एंड व्हिच यू हैव टू मैनेज। चलिए, आप जब आपने बात कर रहे हैं, वापस मैं आपके फर्स्ट अटेम्प्ट पे आता हूँ। व्हेन you were not able to clear, you failed, so what was there in your mind, and how you got energy to start preparing for the next attempt? एक्चुअली इसका शुरू होता है क्योंकि मैंने बहुत पहले से तैयारी करना शुरू किया कॉलेज में और सोच था मेरा इस एग्जाम को लेके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इमोशनल हो गया इस एग्जाम को लेके, एंड विच रियली कॉस्टेड मी, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट गेटिंग दोज मार्क्स एंड जो भी जैसे ऑप्शनल में 300 लाने हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप जाके एक्चुअल सर्विस कर पाएंगे। अगर आप पहले इमोशनल हो जाएंगे, कलेक्टर बनने के सपने देखने लगेंगे, डे ड्रीमिंग करने लगेंगे, तो शायद आप इमोशनल होके जो एग्जैक्टली प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है हम वो उस पर थोड़ा फोकस ना करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद यही हुआ। आई वाज नॉट एबल टू give proper importance to answer writing, the facts and figures that are required to write answers. And जब रिजल्ट आया तो some of my friends were able to clear, and then I thought to myself कि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मुझसे ज्यादा देश की सेवा करना चाहते हैं या मुझसे अच्छे लीडर्स होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मेरी अंदर इतनी भावना है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। देन आई रियलाइज दिस फैक्ट दैट नहीं, एग्जाम क्लियर तो एग्जाम के तरीके से ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है, क्या यूपीएससी डिमांड कर रहा है, एंड दैट रियली वर्क्स आल्सो, बिकॉज व्हेन वी कम ऑन द फील्ड तो वो जो अटेंशन टू डिटेल होता है और वो एक अप्रोच होती है, प्रिसाइज अप्रोच होती है सिचुएशंस की तरफ, जब तक वो एग्जाम में नहीं आएगी तब तक आप वो क्लियर करके आप फील्ड पे भी नहीं दिखा पाएंगे। सो दैट रियली हेल्प। तो जब वो रिजल्ट आया एंड आई कुड नॉट फाइंड माय नेम इन द फाइनल लिस्ट आफ्टर द इंटरव्यू, तो दो ही चीजें मेरे दिमाग में थी कि पहला कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ गया हूँ, दैट मीन्स 90% ऑफ द जॉब इज डन,
सिर्फ 10% का पॉलिशिंग और 10% का जो एक टॉपअप हम कहेंगे या आइसिंग कहेंगे, दैट इज ओनली लेफ्ट. So I have to work upon that. And secondly, I have to understand कि जो टॉपर है और जो मैं हूँ उनमें क्या डिफरेंस है. Like what are the quantitative and objective difference that makes anybody a topper and that makes that keeps anybody out of the list. So I listed down all the things कि अच्छा हाँ आंसर्स में ये लिखना होता है, इंटरव्यू में ऐसे बोलना होता है, ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है. एंड देन आई for 1 year I did a lot of hard work to imbibe those things inside me so that I am able to perform like toppers, and I was able to do so. इनफैक्ट एक चीज आपने जैसे अभी बात की, मेंस पे फिर वापस आता हूँ जहाँ आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाट डू यू थिंक, कंटेंट मैटर्स और is it your presentation that gets you good marks? I think sir, कंटेंट तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कैंडिडेट क्या लिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसका तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी कि जब एक कोई एग्जामिनर है, वो भी ह्यूमन है, वो भी एक किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके भी ऐसे तो कंप्यूटर तो पेपर चेक नहीं कर रहा है. तो इतने सारे पेपर्स उनके पास आते हैं और हम सब लोग सेम ही कंटेंट पढ़ते हैं सारे, चाहे वो टॉपर्स हो या जो क्लियर नहीं कर पाते. आपको पता है ये सेम कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, वही सब लोग पढ़ते हैं, सेम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट मेक्स एनीबॉडी अ टॉपर एंड समबडी इज आउट ऑफ द लिस्ट? तो उसमें कंटेंट को एनालाइज करना कि आप कैसे लिख पाते हैं, उस कंटेंट को एक्सप्रेस करना. एक चीज को एक्सप्रेस करने के 10 तरीके हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर एन आंसर which has like the content remains same, but the way it is written, the choice of words, how it is presented, it should be very bureaucratic, it should be politically correct. उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म वाले थॉट्स नहीं दिखने चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखनी चाहिए, भले कंटेंट सेम रहे. दिस इज नंबर 1. सेकेंडली जो नीटनेस होती है या हैंड राइटिंग होती है, वो भी कहीं ना कहीं तो देखिए मैटर करेगी. जब आपको इतने सारे पेपर चेक करने हैं तो किसी ने अगर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखा है एंड किसी ने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया बिना किसी ऑर्गेनाइज किए हुए, सब कैटेगराइज किए हुए या प्रॉपर डिवीजन किए हुए कि आप क्या आंसर में क्या लिखना चाह रहे हैं, और कंटेंट दोनों का सेम है, टाइम दोनों के पास सेम है, तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल दैट मोर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू somebody who has written it in a presentable manner as compared to somebody who has just written for the sake of it. इससे रिलेटेड एक और क्वेरी जो मेरे सामने आजकल पिछले कुछ दिनों में एक वेब सीरीज देखने के बाद लोगों की आई है कि सर पेपर पूरा कर दें तो इसका मतलब कि हमें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे. सो व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट दिस? एक्चुअली सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ऐसा होता है अगर आप पेपर पूरा खत्म कर रहे हैं तो आप मेंस क्लियर करने के आप वर्ज पे होते हैं, इसमें देयर इज नो डाउट, क्योंकि इतना कंपटीशन है एंड इतनी स्पीड में लिखना पड़ता है कि दैट मेनी पीपल दे जस्ट फेल इन फिनिशिंग ऑफ द पेपर. तो अगर आप पेपर खत्म कर रहे हैं तो आप वर्ज पे हैं मेंस में क्लियर करने के लिए, बट आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू तक मतलब इंटरव्यू के बाद भी क्लियर कर लेंगे, दैट यू कैन इट कैन नॉट बी गारंटीड. जो मेरा केस था कि मेरा भी जो एग्जाम जो मेंस के रिजल्ट आए थे, आई कुड क्लियर द मेंस कट ऑफ बाय ओनली 3-4 मार्क्स. तो मेरा इंटरव्यू कॉल तो आ गया, बट वो 3-4 मार्क्स से यू आर नॉट एबल टू अचीव द रैंकिंग, क्योंकि इंटरव्यू में भी फिर आपको एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको 209 210 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 400 या 500 रैंक आएगी आपकी, जिसमें आप लिस्ट में बस आएंगे अंदर. तो इसलिए मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर इस फोकस से जाते हैं कि सिर्फ पेपर खत्म कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ मेंस में सिलेक्शन हो सकता है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग और मेंस को भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें. 1750 मार्क्स का मेंस होता है तो उसको उतनी वेटेज मिलनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है. आपने इंटरव्यू की बात की, तो अभी इस बार 20 का फिर थोड़ा पोस्टपोन हो गए हैं, दोनों when it would be had. So talk a little about interview. एक यूपीएससी का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, those who are going to face interview board in few months now. Actually, as everybody knows by now that I have given 2 interviews in my 2 attempts, and both the interviews were drastically different for me. And first interview जो मेरा था, मैंने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गया, मुझे लगा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री और मेंस क्लियर हो गया है तो इंटरव्यू तो निकल ही जाएगा. एंड जब आप थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेते हैं तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है अपने आप को थोड़ा
शोकेस करने की जब आप क्लाइंट से मिलते हैं। तो आई टुक विद दैट परसेप्शन एंड दैट रियली कॉस्टेड मी वेरी हार्ड बिकॉज यूपीएससी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यूपीएससी इंटरव्यू इज नॉट चेकिंग कि आप अपने आप को सेल कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कहा जाता है ना, आजकल बहुत सारे कॉर्पोरेट गुरुज आ गए हैं that you have to tell yourself, you have to tell you are the best person and you are everything. UPSC is completely different. UPSC is completely different. वहाँ पे इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं, हम कितने 23-24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके वहाँ पे पहुंचे होते हैं। तो दे आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग अस टू सेल आवरसेल्फ कि आप बताएं कि आप कितना अच्छे हैं और यू आर द बेस्ट इन योर जॉब। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर रैशनल, बैलेंस एंड जेन्युइन ह्यूमन बीइंग्स हु आर रेडी टू लर्न, जो हम्बल हैं, जो देश सेवा कर सकते हैं जाके। क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे जगहों पे रहना पड़ता है, एकदम गांव में रहना पड़ता है आपको, जहाँ शायद फैसिलिटीज भी ढंग से ना हो, बट वहां पे भी आपको काम करना पड़ता है। और यही मकसद है सर्विस का कि आप उन जगहों पे जाके काम करें जहाँ पे अभी तक वो फैसिलिटीज पहुंची नहीं, वहां पे वो फैसिलिटीज लेके आए। आप वहाँ के जो लोग हैं जो अभी तक नहीं डेवलप हो पाए हैं, उनको आप डेवलप करें। तो उसके लिए बहुत ह्यूमिलिटी और बहुत पेशेंस और बहुत कंपैशन और एम्पैथी की जरूरत है। तो जो यूपीएससी इंटरव्यू होता है वो ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे बहुत सारी, इट वाज एन आई ओपनर एंड देन आई चेंज माय पर्सनालिटी, आई बिकेम मोर हम्बल, आई बिकेम मोर calm and quiet. I started looking at the like these things instead of just telling what I know. I started becoming a good listener, I started becoming a good learner. That really helped in the second interview. As people say, nowadays prelims has become more of a luck rather than planning or study or awareness. So no doubt what I feel, your awareness, your knowledge, that always works, but do you think it plays a little role in at prelims level? I think yes sir, luck definitely plays a role, क्योंकि वो कट ऑफ बहुत कम होता है। तो अगर आप मान लीजिए 105 कट ऑफ है और आपके 105.2 हैं, तो दैट मीन्स आप लक के सहारे ही आए हैं। बट और किसी के 104.8 है तो वो बाहर है। ये तो लक, इतना लक तो करना ही पड़ेगा, इतना कंपटीशन है तो इतना लक तो रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा। एंड ये हर एग्जाम में क्लियर है। बट एट द सेम टाइम जो लोग इस पे बैठे रहते हैं, जैसे आई हैव सीन मेनी पीपल जिनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सीट्स कम हो गई हैं और कट ऑफ क्या है। तो उनके लिए मेरे पास बस एक ही जवाब होता है कि हम तैयारी कभी सीट और कट ऑफ देख के नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 110 कट ऑफ होगा तो आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे और 100 कट ऑफ में बोल दूंगा तो आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी। आपकी पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए। या ऐसा नहीं है कि सीट्स आज 400 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप क्या कहते हैं ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और 600 सीट होगी तो आप सोचेंगे नहीं अब तो 600 हो गई है तो अब हम कम पढ़ाई करेंगे। तो जो लोग उस मेंटालिटी में रह जाते हैं, आई थिंक उनको लगता है कि लक प्लेज 80% ऑफ द रोल, कि अरे सीट्स कम हो गई इस बार या कट ऑफ ज्यादा कम हो गया। वो कभी स्ट्रेटेजी थी नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने क्लियर होने तक नहीं पता था कि इस बार एग्जाम में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि मेरे को 400 नंबर पे आना है या 500 पे आना है। मेरे को तो अपना बेस्ट देना था। आई गेव माई बेस्ट। अब उसमें मेरी 83 रैंक आती या मेरी 300 रैंक आती या 400 रैंक आती, उसको हाइंड साइड में हम लक कहेंगे। बट लक को आप फ्रंट में रख के तैयारी नहीं कर सकते। तो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू प्रीलिम्स में भी जो पेपर आ रहा है वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो लक है। बट आई पर्सनली फील दैट यूपीएससी नोज की कंटेंट बहुत है मार्केट में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो कंटेंट तो सबको पता है, सबने वो पढ़ रखी है सारी चीजें। बट दे वांट टू डिफरेंशिएट पीपल हु कैन मूव बियॉन्ड द कंटेंट। वो उनको ऐसे लोग चाहिए जो कंटेंट तो पढ़ लें, उसको समझ लें, बट अपना दिमाग अप्लाई करें और फिर वो आंसर्स लिखें। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वही एग्जाम क्लियर करें। जो लोग बोल रहे हैं कि हमने तो ये वाली बुक्स पढ़ ली थी या हमने तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे टेस्ट सीरीज लगाए थे फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाता है कि आपने कोई टेस्ट सीरीज करी है तो आप उसी से वो क्वेश्चन उठाएं वहां पे। वो देखना चाहते हैं कि आप बिना किसी कंटेंट के अपने इंस्टिंक्ट से और अपने कॉमन सेंस से आप कैसे आंसर डिराइव कर पा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट वाज ऑन वैक्सीन। उस समय तक वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में शुरू नहीं हुआ था, लास्ट ईयर अक्टूबर में।
तो उस ऑप्शन में था कि जो वैक्सीन होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला ऑप्शन था, उसमें बहुत टेक्निकल ऑप्शन था। सेकंड जो था वो भी बहुत बायोलॉजिकल और टेक्निकल ऑप्शन था। तो पीपल स्टार्टेड क्रिबिंग कि अरे ये ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में क्यों पूछा है, इतना टफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी पूछा जाता है यूपीएससी में। बट उसका थर्ड ऑप्शन था कि इस वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो उस समय लोगों को लगा कि हाँ वो आंसर सही होगा। बट अगर हम आज देखें तो सब लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार हुआ कि नहीं हुआ, आपको सर दर्द हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं और उन दो टेक्निकल ऑप्शंस को छोड़ दें, और थर्ड ऑप्शन जो था कि वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इतना तो हमें पता है कि एक छोटी सी बच्चे को भी वैक्सीन लगती है तो फीवर तो आता ही है। तो अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते तो आपका आंसर सॉल्व हो जाता। अब इसमें लोग कहें कि ये लक्स के बेस पे सॉल्व हुआ है या कॉमन सेंस के बेस पे हुआ है, तो आई थिंक जो एस्पिरेंट्स हैं वो खुद समझदार हैं कि उनको क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। One last question from my side, then I'll hand it over to Saroj sir. He's our academic director. Okay. इसमें जो एक कहा जाए कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाली जो बात होती है, अगर वो आपको डिफाइन करना हो तो कैसे आप इनको फ्यू वर्ड्स में कैसे आप डिफाइन करेंगे अपनी सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस? यस। आई थिंक ये तो मुश्किल होगा बताना, बट आई वुड जस्ट से दैट कहते हैं कि भाई आईएएस बन गए तो एक रात में आप लाइक यू बिकम ओवरनाइट स्टार। आप जिस दिन रिजल्ट आता है अगले दिन सारे न्यूज़पेपर आ जाते हैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए। देन मैगजीन्स लाइक प्रतियोगिता दर्पण एंड दिस करियर सक्सेस, इनके ये आपसे आपके इंटरव्यूज लेने आ जाते हैं। तो यू फील दैट यू हैव बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवरनाइट सक्सेस। मेरे 3 साल की प्रिपरेशन लगी है वो एक ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए, या किसी की 6 साल की प्रिपरेशन लगती है ओवरनाइट सक्सेस के लिए, या आपने इतने स्ट्रगल्स होते हैं, इतने सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। So I think the secret of success would be to just not give up, continuously like understand what you are doing and just go with your rationality. इस एग्जाम में आई डोंट फील कि ज्यादा दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। सलाह सबकी वो होता है, सुनो सबकी, करो अपनी। एंड फील्ड पे भी यही काम करना होता है। आपको एक्सपर्ट एडवाइस हर जगह से आ रही होती है, बट जो आपको ठीक लगता है, आपकी रैशनैलिटी, इसीलिए आपको सरकार ने चुना है कि आपकी रैशनैलिटी है डिसीजन लेने के लिए। तो सुनो सबकी, एनालाइज, rationalize and then take the decision on your own based on your own instinct. तो यूपीएससी प्रिपरेशन में भी मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे गाइडेंस है, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है। आप सबको सुनिए, सबको एनालाइज करिए एंड देन सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। सबके लिए अलग अलग चीजें काम करेंगी। मेरे लिए कुछ काम किया, आपके लिए कुछ और काम करेगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, क्योंकि जब आप अपने लिए आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या वर्क करेगा, तभी जब आप फील्ड पे जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दूसरों के लिए क्या वर्क करेगा। Amol, one thing more I would like to know now, as aspirants look for content on internet, and use of internet has become a big tool as far as preparation is concerned. So what do you suggest, how aspirants should look at internet as a preparation tool? Sir, in this case, I would like to divide internet into two parts. One is internet which is relevant for UPSC, जो जितने भी websites हैं, YouTube channels हैं preparation के लिए. And second is general social media which we all are addicted to somewhere or the other. So first I would like to address the social media thing. तो वहाँ पे I would suggest aspirants की be very limited. बहुत कम यूज करिए सोशल मीडिया को, बिकॉज सोशल मीडिया से आपका जो मेंटल बैलेंस होता है वो थोड़ा बिगड़ता है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट गोइंग इन योर हेड। आप देख रहे हैं दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, एंड समटाइम्स इट यील्ड्स टू पीयर प्रेशर आल्सो व्हेन यू सी कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, वो अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, वहाँ मतलब बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि आपसे तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। तो आई थिंक वो अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फेसबुक, सोशल, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें। मैंने भी यही चीज करी थी। बट अगर आपको उससे कोई काम है, आपका कुछ है, तो आप एक लिमिटेड टाइम डिसाइड कर लीजिए कि सिर्फ इतना ही करना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू द रेलिवेंट पार्ट फॉर यूपीएससी इन इंटरनेट, कंटेंट बहुत है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो उसमें भी मैं यही कहूंगा, सुनो सबकी पर करो अपनी। तो the websites are trying to overload anybody with the content. तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि चूज द कंटेंट
which you really like, which you feel that it is going to help you in your preparation. कंटेंट तो ऐसा बहुत कुछ आने लग जाएगा, बट शायद वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट हो ही ना, बट जस्ट फॉर द सेक कि भाई एक वो वेबसाइट जो है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो कंटेंट निकाल रहे हैं तो आप उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं. आई डोंट गो बाय दिस स्ट्रेटेजी. चूज वाइजली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू. ओके. And second thing is, in website and content, always choose people who are experts in the field. आजकल बहुत लोग हैं जो without being related to UPSC वो ये सारे कंटेंट निकाल रहे हैं, बिकॉज आजकल कंटेंट ओवरलोड हो रहा है. देयर आर मेनी इंस्टाग्राम चैनल्स आल्सो, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स आल्सो हु हैव नो रिलेशन विद यूपीएससी. वो ना वो यूपीएससी कोचिंग कर रहे हैं, ना वो उनकी क्लासेस निकाल रहे हैं, बट स्टिल दे कीप ऑन पुटिंग सम करंट अफेयर्स कंटेंट कि समझाने के लिए लोगों को. तो उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो आई थिंक फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज जस्ट वांटिंग टू नो समथिंग इट्स फाइन, बट समबडी हु इज प्रिपेयरिंग यूपीएससी तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए होती है ऑनलाइन भी. तो उसमें जो लोग सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, उनके आप कंटेंट देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है वो चीज बताएंगे आपको. वो जनरल मिर्च मसाला लगा के चीजें नहीं बताएंगे अपने सिर्फ व्यूज पाने के लिए या सिर्फ लोगों को एंगेज करने के लिए. एक और जो प्रॉब्लम मैंने पिछले कुछ सालों में देखी है, पिछले खास के 7-8 सालों में, जो people tend to join test series in the beginning of their preparation. मुझे जहां तक लगता है कि आपकी जब preparedness है then only you can test it. Otherwise, joining a coaching for test series in the beginning, is it worthwhile? What's your feel about this? I think like the internet question, I would again like to divide the test series into two parts. टेस्ट सीरीज का आइडिया क्या होता है? पहला होता है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं जो यूपीएससी पूछ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो. दूसरा टेस्ट सीरीज का जो एडवांटेज या जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि आप टेस्ट लाइक इन्वायरमेंट में बैठ के वो एग्जाम दे सकें, कि 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन लिख पाएं या 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर पाएं. तो ये दो चीजें बिल्कुल अलग रखनी चाहिए. जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ ये सीखने पे होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं. तो उस समय हमें बस ये फोकस करना है कि जो भी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं या अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है तो पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी में आए होते हैं, यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको 1 बाय 1 सॉल्व करिए. उनको टेस्ट की तरह देने की जरूरत नहीं है. आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके साथ जो भी 5-6 क्वेश्चन उस टॉपिक होते हैं आप वो सॉल्व कर लीजिए. आई थिंक दैट विल सर्व योर पर्पस. बट जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, when you are able to appreciate the whole content of UPSC, when you are able to appreciate the time limit for UPSC, then you should go ahead with that professional test series which you join in a coaching center where the time is there, where professional evaluation is there. तो इन चीजों को डिवाइड करके रखिए. अगर आप शुरू में ही एक प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि मैंने इतने ज्वाइन भी कर रखा है वो टेस्ट सीरीज, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है उस समय तक. तो अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन डाल के आपको कोई फायदा होगा नहीं. So sir, you have asked Mr. Amol everything. There's another for me to ask, but then one last question, if Mr. Amol could throw light on that. While choosing the coaching institution, it is always a task for the candidates. What criteria they should look for? If you could throw some light on this aspect. All right, it's a very valid question. तो देखिए सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो ये होता है कि आपको फिजिकल, आजकल के हिसाब से अगर हम देखें, फिजिकल ज्वाइन करना है कि ऑनलाइन ज्वाइन करना है. तो पहले जब मैंने तैयारी की थी तब फिजिकल का ही ऑप्शन होता था, एंड जब मैंने क्लियर किया अराउंड 17-18 में तब जाके थोड़ा ऑनलाइन शुरू हुए हैं. एंड नाउ द ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग अ लॉट. तो अगर मेरी पर्सनल सजेशन माने तो आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग आर द बेस्ट. बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसमें कि आप अपने टाइम पे लेक्चर्स देख सकते हैं, दिन रात, वीकेंड्स पे. कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता कि कब जाना है कब आना है. दिल्ली में आप रहने से बच जाते हैं. वहाँ का जो खर्चे होते हैं, राजेंद्र नगर के एस्पिरेंट सीरीज में सबने देख ही लिया है कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है. तो उनसे अगर बचना है आपको तो आई थिंक ऑनलाइन इज ऑल्सो वेरी गुड. थर्डली, ऑनलाइन में होता है आप पेसअप अपने हिसाब से कर सकते हैं. मान लीजिए आपकी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लगातार 3 महीना पढ़ाई कर सकें, आपको लगता है आप कॉलेज में या जॉब कर रहे हैं तो आपको शायद 1 साल लग जाएगा, तो आप उस ऑनलाइन कोचिंग को आप थोड़ा, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया.
दूसरा क्राइटेरिया जो मैं मानता हूँ ये होता है कोचिंग सेंटर से कनेक्ट कितना करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोचिंग सेंटर में आप ये देखें कि कितने टॉपर्स निकले हैं उसमें से, या उनकी फीस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंसेस के हिसाब से, बट आई डोंट से कि जिसकी फीस ज्यादा होगी वो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, जिसकी फीस कम होगी वो खराब होगा, वो रेप्यूटेड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो अब तो आई थिंक आप ऑनलाइन जाइए, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दिख रहे हैं वहां अच्छा सा एनालिसिस करिए कि आर दे गिविंग यू व्हाट यू वांट। तो इफ दे आर गिविंग यू व्हाट यू वांट, आप उनसे बात करिए। अगर आप उनसे पर्सनल कनेक्ट बना पाते हैं तो इट्स वेरी गुड। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, आई वेंट टू अ वेरी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन राजेंद्र नगर फॉर कोचिंग, एंड जब मैं वहां घुसा तो उन्होंने मेरे से ठीक से बात भी नहीं करी। मतलब कोई चेयर नहीं होती वहां पे, आपसे वो ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं। तो आई थॉट कि यार मैं अपना पूरा करियर स्टेक पे लगा के एक ऐसी जगह पे आया हूँ वेयर आई फील दैट आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एंड ये लोग हैं, मैं फीस इनको देने को तैयार हूँ, बट फिर भी ये लोग मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो आई रियली I did not find that coaching institute good for me, even though it was one of the most reputed coaching institutes. Then I went to another one where I could find the personal touch, where the people, the management, they were able to guide me, they were able to console me also कि नहीं सब ठीक है, they were able to motivate me, counsel me. Then I went ahead with that. So this is a good, I think, good amount of exercise should be done to join the right coaching center, जिसको आप relate कर सकते हैं, which coaching center is providing you whatever you want. तो अगर वो दोनों डिमांड और सप्लाई मैच हो रहा है तो आई थिंक that's the best thing for choosing a coaching center. Amol, I would like to ask one question. When you compare your first job with civil services, what kind of difference? And this message is for those engineers and MBAs who think private sector and this corporate job is the best, and nothing can replace that. Money and everything is there. So I would like to have your experience in. I think, sir, in both the cases, I won't judge any other job, or I don't compare these things for anybody else, because सबके अपने goals होते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं, उनका goal ही यही होता है कि they have to earn lot of money, they have to go abroad, and they have to work in big cities. They want to live that private sector, corporate kind of life, and that's fine also. It's up to them. I mean, who are we to judge anybody? And then there are people like me who want to work in the public sector, who want to work with people, who want to do something and interact with people, get a chance to lead. So I think it's a personal choice, but having compared my own life in both the places, so I would say in private sector, I was not totally satisfied, because in private sector, सुबह जाते थे ऑफिस, रात को आते थे, 4 लोगों की टीम होती थी, एक लैपटॉप होता था सबके पास, और आप बस उसमें ही घुसे हुए हो। आपको बस लैपटॉप में घुसे रहना है, फॉरेन में क्लाइंट है, उनसे बातें करनी है, उनके डेटा क्रंचिंग करनी है। आपकी जॉब में, मतलब मेरी जॉब में कोई ह्यूमन एंगल था ही नहीं। इवन हम लोगों के नाम भी नहीं होते थे, वो कोड, हमारा कोड नंबर होता था जिसके नाम से हमें क्लाइंट बुलाता था कि मेरा कोड कुछ AS समथिंग करके होता था, एंड क्लाइंट यूज्ड टू से कि व्हाट इज दिस AS पर्सन डूइंग। तो ऐसा लग रहा था कि वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू रोबोट्स, and this was not the job which I wanted to do, and so I thought कि यार इतनी मेहनत हम किसी और के लिए कर रहे हैं, मतलब जो भी फाइनल डील साइन होती है, जो भी बेनिफिट जाते हैं वो तो टॉप बॉसेस को या एम्प्लॉयर्स को जाते हैं, तो इतनी मेहनत हम करते हैं, क्रेडिट कोई और लेके जाता है। तो अगर इतनी मेहनत मैं अपने ऊपर करूंगा तो आई थिंक मैं अपना जो सिविल सर्विसेज का ड्रीम है वो मैं पूरा कर पाऊंगा। एंड व्हेन आई एंटर्ड दिस सर्विस, तो यहाँ पे आके जो मुझे देखने को मिला, द ह्यूमन एस्पेक्ट केम बैक टू माई लाइफ, वेयर जहाँ पे मेरा नाम ही कोई नहीं जानता था, यहाँ पे अब मेरे नाम से काम हो जाता है कि अगर मेरा नाम पहुंच जाए तो वहां से सब जान जाते हैं। तो दैट्स द वन लाइन डिफरेंस आई वुड लाइक टू से। मेरे जो शहर है, नोएडा का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे नाम हुआ, वहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, वहाँ पे कोई भी सोशल इवेंट होता है तो मेरे को इन्विटेशन आता है। देन जब सर्विस में हम फील्ड पे आते हैं, तो फील्ड पे आके जब काम करने का मौका मिलता है तो आप डायरेक्टली आपको हेड ऑफ ऑफिस बनाया जाता है, तो आप यू आर एबल टू डू थिंग्स विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू। आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ड्राइव करते हैं इनिशियल ईयर्स में, और आगे जाके पॉलिसी मेकिंग ड्राइव करते हैं। तो दो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है, एक समाज और हमारी सोसाइटी जो है उसको समझने की जो हमारे अंदर एक वो होती है ना कि वी आर एबल टू डू दैट। तो वो बहुत मजा आता है वैसा काम करने में कि
बहुत हर दिन नए नए लोगों से मिलो, नए नए एक्सपीरियंसेस देखो। मुझे मिजोरम में 2 साल हो गए हैं एंड एवरी डे हैज बीन अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। इस एनवायरनमेंट में काम करके, यहाँ के लोग एकदम अलग हैं, एकदम अलग एनवायरनमेंट है, मजा आता है यहाँ पे लोगों के साथ मिलने में। वी नीड टू learn so many things from them, that how to, अगर आपने देखा हो नॉर्थ ईस्ट में जो सिविक सेंस है, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं कितना लॉ अबाइडिंग है, तो वो देख के मिलता है कि हाँ यार ये हमने कुछ सीखा है इन लोगों से। एंड यहाँ पे भी जब आप काम करते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट टेरेन, फूड डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो बहुत नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी दैट द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ हैज कम बैक टू मी विद दिस सर्विस। Now I would talk about the destination, dream destination for all the youngsters, Lavasana. So आप अपने सिलेक्शन से लेके और लवासना तक के जाने का पीरियड और लवासना पहुंच के जो आपकी फील रही, I think that would be really motivating for a lot of youngsters. आई थिंक सर लवासना तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता ही है। कॉलेज में भी आई रिमेम्बर जब बाकी लोग सोचते थे कि हमें हार्वर्ड जाना है या किसी आईवी लीग कॉलेज में जाना है या आईआईएम में जाना है, मेरा तो होता था यार ये सब उनके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर मेरे को लवासना जाना है। बहुत वीडियोस देखता था मैं उस समय यूट्यूब में, तब यूट्यूब लग्जरी हुआ करता था, इतना इंटरनेट आया नहीं था तब तक। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था लवासना के। एंड जब सिलेक्शन हुआ तो द फर्स्ट थिंग वाज कि अरे लवासना जाने को मिलेगा। मतलब आईएएस तो ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप काम करेंगे, दैट्स अ न्यू लाइफ दैट इज वेटिंग फॉर यू, बट अभी तक ये था कि यार लवासना जाने को मिलेगा। तो वो दैट्स वेरी गुड। एंड when you join Lavasana, when you go in front of the gate, जो गेट आपने सिर्फ फोटोज में और वीडियोस में देखा हो, आज अब वो आपके सामने हो एंड यू आर among the few people who get a chance to go inside that gate. आपके पास चाहे कितना पैसा हो, आपके पास चाहे कितनी अप्रोच हो, बट आपको उसके अंदर एंट्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ये एग्जाम नहीं निकालेंगे। तो वो जो फीलिंग होती है जब आप गेट के अंदर घुस रहे होते हैं, तो आई हैव स्पोकन टू ऑल माय बैचमेट्स, सबके वो आंखों में आंसू होते हैं, एवरीबॉडी गेट्स इमोशनल व्हाइल एंटरिंग दैट प्लेस एंड दैट प्लेस हैज अ डिफरेंट चार्म ऑफ इट्स ओन। वहां पे जो जो चीजें करने को मिलती हैं वो शायद लाइफ में कभी नहीं करी होती हैं। दैट इज द पर्पस कि लोग इतने अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो और उनके अंदर की जो बेस्ट पर्सनैलिटी है उसको बाहर निकाला जाए, तो कॉन्फिडेंस है उसको बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, आपको बहुत सारी वो फिजिकल ट्रेनिंग होती है। देन एकेडमिक्स में भी जो पढ़ाया जाता है बहुत इट इज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड सोसाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी। So I consider myself very lucky that I got a chance to be trained in that respected institute. जो यंगस्टर्स इस हमारी कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, उनको लवासना पहुंचने के लिए कोई एक ऐसा एडवाइस, कोई क्लू दें आप, जिससे कि all these aspirants are benefited and the resolve for this gets stronger and stronger. I think जो भी हमने पिछले 1 घंटे में डिस्कस किया, I think that would somewhere help. I am very hopeful कि कुछ I think कुछ मीनिंग लोगों को मिला होगा, उसमें कुछ समझ में आई होंगी चीजें। तो I think यही है कि आप एग्जाम पे फोकस करें, एग्जाम के हर पहलू को ध्यान दें और डेडिकेटेड रहें। ऐसा ना हो कि आज आप एक सेमिनार अटेंड करके या एक कोई वीडियो देख के आप बहुत एक्साइटेड हो गए, तो आपने 1 महीना अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप बोर हो गए। यूपीएससी एक मैराथन है। जैसे अगर आप बोलें कि लवासना पहुंचने का क्या सफर है, तो मैं कहूंगा वो एक मैराथन है एंड आपको अपनी पेस, अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है आखिरी सफर तक। अगर आप बहुत तेज हो गए और आपने तेजी के चक्कर में, जोश के चक्कर में अपने होश खो दिए, तो शायद आप कहीं पहले ही आप रुक जाएंगे। बट अगर आप धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए अगर आप आगे चले गए, अपना मेंटल स्ट्रेंथ और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपने एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को लेके अगर आप आगे बढ़ते रहें उस प्रोसेस में, तो आई थिंक आप लवासना तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। Thank you so much. I think it had been really enriching conversation. People, those who are watching and those who will watch it later, because we preponed our talk and there were some issues. It was done at very short notice. Yes. So, and my apologies for that. The situation here is not conducive. थोड़ा इसको delay करने के लिए.
And thank you so much. Despite of all odds, you have taken out time to talk to us. You have motivated youngsters, and probably बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके सक्सेस से इंस्पायर होके शायद, और because in last 34 years I have seen this, success inspires success. वो एक जो कहावत है, वर्डेज बहुत ट्रू है सिविल सर्विसेज के अरेना में, आई थिंक. और आप लोग एक्चुअली सर, जब आपने बोला कि आप मैं आऊं और स्टूडेंट से बात करूं, तो क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे लिए ये दीज सेमिनार्स एंड दीज वीडियोस यूज्ड टू बी द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर एज वेल एज द मोटिवेशन फैक्टर. तो मुझे लगता है कि अगर मेरे आके कुछ बोलने से अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलती है या किसी को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी लिटिल थिंग दैट आई कैन डू फॉर एनीबॉडी एंड आई शुड डू दैट. I think I'll come back to you again and would like to discuss about Lavasana life and your India tour, Bharat Brahman, because वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद उनका मोटिवेशन probably कॉमन स्टूडेंट शायद उन चीजों को देख में नहीं पाते, सोच में नहीं पाते कि एक आप एग्जाम को पास करके IAS का बनने के बाद या आप जब सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, how your life changes for you and for your family. So I think very shortly I'll plan another session, and I would like to have all those details, all those information about life at Lavasana and associated things. All right, absolutely. Right. Thank you so much. It was really wonderful talking to you, and all the best. Bye-bye. Take care. Okay, thank you so much. Thank you.